Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your social science teacher. So students, in this video we would like to start second semester of social science subject. So you are having a new textbook and new workbook also. So because the semester second is now starting. So in the screen you can see over there the first page of your textbook. Okay? And this textbook should be of Gujarat State Board of School textbook and Gandhinagar. Letter on the second page is like this one. And the third one is the fundamental duties. And the fourth one is the index. So there are around 12 chapters in the second semester part. So the first chapter is Medieval Gujarat. So right now we will discuss or start our new chapter of semester 2 is Medieval Gujarat, students. So without any wasting time, let's begin this one, Medieval Gujarat. So you can see in your screen Patola of Patan. This is a cloth which have been very much famous in Patola of Patan. So Patan is obviously in this chapter we will discuss about the middle age of Gujarat, because we are Gujarats and we should have to know about the Gujarat, right? So let's begin. A man roamed about a village street playing a song on his Ravana Hatha board violin. Ravana Hatha means violin. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were Chelaji re Patan thi पटोला मोंघा लावजो. सो वहाँ पे ये सॉन्ग स्टार्ट होता था जहाँ पे लोग ये गाते थे, पाटन के लोग, कि पाटन से पटोला ले आओ जो, मतलब वहाँ से लेकर आना पटोला. जो आप पीस देख रहे हो ना कपड़े का, वो. Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather that what is Patola of Patan. तो पटोला प्रतीक के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि हिस्टोरिकल, मतलब ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है. एंड ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी अनहिरवाड़ पाटन. तो अनहिरवाड़ पाटन के बारे में भी उसको बताया. So in the medieval age 746 CE to 1304 CE, approximately 560 years ago, मतलब 560 years ago, चावड़ा और सोलंकी और वेघाली डायनेस्टी रूल कर रही थी गुजरात में. एंड उस टाइम उनके जो राइन थे, ड्यूरिंग देयर राइन द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम वॉज अनहिरवाड़, अनहिरपुर, पाटन. तो जब ये तीनों डायनेस्टीज़ रूल कर रहे थे गुजरात में, तब अनहिरपुर पाटन को उसके बाद नाम दिया गया अनहिरवाड़ पाटन. तो पहले अनहिरपुर पाटन नाम था, उसके बाद नाम चेंज होके अनहिरवाड़ पाटन रख दिया गया. एंड करेंटली अनावड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वॉज ओरिजिनली नोन एज अनहिरवाड़. According the historical text, the Chavda dynasty ruled over Panchasar. Its ruler Jaishi Khari attained martyrdom in a war. His son Vanraj Chavda recaptured his father's kingdom. So जब historical text में ऐसा लिखा हुआ है कि चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड कर रही थी पंचासर में, तो इट्स रूलर, उनके रूलर जो थे जयश्री खरी, वो मार्टरडम वॉर में शहीद हो गए. तो उसके बाद उनके जो सन है वनराज चावड़ा, उन्होंने किंगडम को रिकैप्चर्ड किया और इन प्लेस ऑफ द रूइंड किंगडम ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू किंगडम. तो उनके किंगडम के थ्रू एक न्यू किंगडम उन्होंने ग्रो किया, इस्टेब्लिश किया, जो सरस्वती रिवर के बगल में था, और उसे वो नाम दिया गया अनहिरवाड़ पाटन. इट इज़ बिलीव दैट हिज फ्रेंड अनहिर assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named अनहिरवाड़ पाटन after him. उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने उनको ये सजेशन दिया, उन्हें बताया कि एक न्यू किंगडम, एक न्यू टेरिटरी स्टार्ट करो. इसके वजह से उनके नाम से ही वो जगह रखा गया.
द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रॉक्सीमेटली 196 ईयर्स तक 196 ईयर्स तक चावड़ा डायनेस्टी ने रूल किया गुजरात में। एंड उसके बाद फिर सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में आई। Inscription carved on idol. During the rule of the Solanki dynasty, Gujarat became very prosperous. The Rajput era saw Anirwad Patan emerge as one of the most powerful kingdoms. The king of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharaj Jaisingh, Kumar Pal were among the great rulers. तो जिस टाइम में सोलंकी डायनेस्टी हुआ तब गुजरात बहुत प्रॉस्पिरस था, बहुत ज़्यादा पैसे थे वहाँ पे। और उस टाइम राजपूत ईरा भी स्टार्ट हुआ जहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम्स मर्ज हो गए, साथ में थे। वो कौन कौन से किंग्स थे? मूलराज सोलंकी थे, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह और कुमार पाल। ये सब बहुत बड़े ग्रेट रूलर्स थे। द फेमस सोलर कलिका सर्वंगना श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पेट्रोनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। तो जो फेमस स्कॉलर थे हेमचंद्राचार्य, उनको बुलाया गया था सिद्धराज जयसिंह के रूल में। तो अनिर्वाड़ पाटन मेन सेंटर हो गया था एडुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, इसलिए उसको विद्याधाम भी बोला जाता था। सो ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्र आचार्य ने एक बुक लिख दी ग्रामर में, जिसका नाम है सिद्धम शब्द धनु शासन, जिसको बोला गया है सिद्धम शब्द धनु शासन। आफ्टर इट्स कॉम्प्लेक्शन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टायर्ड इन ऑन टू एन एलिफेंट। वो बुक को एक एलिफेंट के ऊपर टायर किया गया और पूरे के पूरे राज्य में, पूरे के पूरे सिटी में उसका प्रोसेशन निकाला गया। बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्र आचार्य वॉज ऑल्सो एडवोटेड ऑन दैट प्रोसेशन। वो प्रोसेशन में खुद ब खुद पैदल चल रहे थे। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ लिटरली टेक्स्ट वॉज गिवन सच इनॉर्मस रिस्पेक्ट। वो पहला टाइम था कि एक बुक को इतना रिस्पेक्ट दिया गया था। एंड उसके बाद उसमें ये बताया गया था कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी मतलब लक्ष्मी, और एडुकेशन मतलब सरस्वती। ये तीनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और नोटिस किया गया था अनिर्वाड़ पाटन में। फिर सोलंकी डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो बहुत ग्रेट रूलर्स थे। एंड हाउएवर 6 ऑफ दीज रूलर्स रिनाउंस देयर थ्रोन टू बिकम हर्मिट। सो उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो छः रूलर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी थ्रोन को छोड़ दे रहे हैं और वो हर्मिट बन जाएंगे, मतलब साधु हो जाएंगे। और ये सारा इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी के एक बुक में लिखा हुआ है। यू कैन सी इन द स्क्रीन सिद्धम शब्द धनुशासन बुक ओवर हेयर, ऐसी टाइप की बुक थी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट this one. Anirwad Patan had not only dynamic kings and academicians, but the queens were also equally dynamic. In fact, Queen Udayamati built a stepwell for the welfare of her subjects. This stepwell is known as Rani Ki Vav. This stepwell, consisting of 7 levels, is an unparalleled example of art and architecture. सो स्टूडेंट, अनिर्वाड़ पाटन में किंग तो पावरफुल थे ही, साथ साथ क्वींस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उनमें से एक क्वीन उदयमती थी जिन्होंने एक स्टेपवेल बनाया था और वो स्टेपवेल का नाम था रानी की वाव। उसमें 7 लेवल्स दिए गए थे और वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आर्ट और आर्किटेक्चर का। द ब्यूटीफुली कर्व्ड स्टोन, उसमें बहुत ब्यूटीफुली कर्व्ड स्टोन करके बनाया गया है और उससे ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी की बारे में पता चलती है। उससे ये भी पता चलता है कि सोलंकी एरा कितना ब्यूटीफुल था। उसी टाइम क्वीन मीनल देवी, जो किंग सिद्धराज जयसिंह के मदर थे, उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाया, बताया सब्जेक्ट्स, वेलफेयर सब्जेक्ट्स के और पिलग्रिम टैक्स के रिलेटेड। जो टैक्स हम लोग लेते थे लोगों को, वो लोग उनके रिलेटेड। और उन्होंने मालव लेक एट ढोलका एंड द मुनसार लेक एट विरमगाम वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शंस। मतलब ये 2 चीज़ें उनके बोलने से बनाई गई थी। द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह।
ये भी शिद्रा जयसिंह के कहने से ही बनाई गई थी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हम लोग अब अपना वीडियो रखते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिटेल मैनर में एक ही टाइम में आपको बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई दिस वीडियो विल बी हैविंग 2 parts. सो up to here Siddharaj Jaisingh we will done it. Later on we will discuss about the Munsar Lake and Naika Devi. Okay students, so till there stay home and stay safe. With the help of this line I would like to pack up. So bye bye and have a nice day students. And your homework is that you have to read this chapter one more time at your home students. Okay, then only you can revise it by yourself. And yeah, purchase the textbook and workbook also, because then afterwards I will make you write the question answers after completing the chapter. So now lastly, bye.